حدیث کہتے ہیں نا, اپنے اہل حدیث کہتے ہیں نا, بخاری مسلم سے بھاگتے ہیں آپ لوگ. ارے پاگل, الفاظ پڑھ کے بتا ترجمہ. کھولے میں یہ تمہاری جہالت ہے. دیکھو عربی سیکھو جا کے. نہیں آپ ترجمہ صحیح کرو. اشارہ کیا کہاں ہے یہاں پہ؟ اشارہ کیا ہے ہی وہاں سے پڑھے, وہاں سے پڑھے. He who fought against. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کفایت اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پیش کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں کریے, آپ سوال پیش کریے, بولیے, سٹیٹمنٹ پیش کریے, اعتراض پیش کریے, جلدی بتائیے. جی. تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قصاص عثمان کے وفادار تھے, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں, اس خلافت کے ایشو میں جو ہے وہ قصاص عثمان کا اس میں زیادہ حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بنسبت باقیوں کے. تو اس میں ایک حقیقت طور پہ ان کو جواب دوں گا کہ اس میں آیا ہے کہ امر خلافت, اس خلافت کے امر پہ, اس خلافت کے حکومت پہ ہم زیادہ حقدار ہیں بنسبت باقیوں کے, خواہ اس کا باب ہی کیوں نہ اٹھ جائے. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے. بس اب میں بولنے جا رہا. آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی زید بھائی؟ جی شیخ, آواز آ رہی ہے آپ کی, تھوڑی کم لگ رہی ہے. پھر سے ایک منٹ میں آپ کی والیوم دیکھتا ہوں کیا اور کر سکتے ہیں. جی بتائیے. وہ اصل میں سینٹر پہ نیٹ چلا گیا تھا, میں گھر پہ آ کے شفٹ ہوا ہوں, اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. ہاں جی, تو ہاں شیخ بتائیے. ہاں میں انہوں نے جو بات کہی نا کہ امر خلافت میں نے ڈنڈی ماری ہے, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے, یعنی امر خلافت کا ذکر ہے اور میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کی بات ہے. بھائی اس روایت میں آپ خلافت کا لفظ دکھا دیں تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا الزام صحیح ہے کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے. اگر آپ اس روایت میں خلافت کا ورڈ, خلافت کا لفظ آپ دکھا دیں تب آپ الزام لگائیں کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے. لیکن اس روایت میں خلافت کا لفظ نہیں ہے, اس میں الامر کا لفظ ہے, الامر. اور پھر آپ پورا لیکچر میرا سنیں گے تو اس روایت یعنی مصنف عبد الرزاق میں فلما تفرق الحکمان, حدیث کی شرح ہوتی ہے, تو حکمان یعنی وہ تحکیم کا واقعہ ہے. یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ پورا جو بیک گراؤنڈ ہے روایت کا وہ تحکیم کا ہے, اور تحکیم کے وقت موضوع بحث کیا چیز تھی؟ خلافت کا کون حقدار ہوگا. یہ چیز وہاں پر بحث کا موضوع تھی ہی نہیں, بلکہ وہاں پر بحث کا موضوع جو مسئلہ تھا وہ خون عثمان کا قصاص کا مسئلہ تھا. اسی بنیاد پر جنگ جمل ہوئی, اسی بنیاد پر جنگ صفین ہوئی. یہ پورا جو میٹر ہے وہ خلافت کا ہرگز نہیں ہے, وہ پورا معاملہ. تو ایک تو حدیث تشریح کر رہی ہے کہ وہ تحکیم کا معاملہ ہے, اور تحکیم کے وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں جو مسئلہ جو بنا اختلاف تھا, جو بنیاد تھی اختلاف کی, وہ خون عثمان کا قصاص. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, باقاعدہ پیش کی گئی لیکچر میں, کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود پوچھا کس سے؟ زبیر رضی اللہ عنہ سے, طلحہ رضی اللہ عنہ سے, کہ بھئی آپ کو کس چیز کا اختلاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ خون عثمان کا قصاص چاہیے. اور پھر میں نے ابن عساکر وغیرہ کی روایت پیش کی, مصنف ابن ابی شیبہ, دوسری کتب احادیث میں بھی عثمانی کی روایات ہیں, کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی سوال ہوا, یعنی جو سوال اہل جمل سے ہوا کہ آپ کی مخالفت کیوں ہے, ان کا جواب خون عثمان کا مسئلہ. اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی سوال ہو رہا ہے کہ بھائی آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں, علی رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ حقدار ہے, لیکن ہمیں خون عثمان کا بدلہ چاہیے. اب جب صراحتاً وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ نہیں, خون عثمان کا مسئلہ ہے, تو آپ اس روایت میں خلافت کی بات کہاں سے لے آئے؟ کس بنیاد پر آپ لے آئے؟ اور پھر وہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, وہ فریق ہے ہی نہیں خلافت کے, وہ خلافت کے فریق ہے ہی نہیں. اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خلافت چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. حالانکہ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح فتح الباری ابن حجر نے لکھ رکھا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے عبداللہ ابن عمر یا ان کے والد کی طرف اشارہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب نہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے خواہاں ہیں, نہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے خواہاں ہے. دیکھیے 3 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ واقع تحکیم کا مسئلہ ہے, اس وقت جو موضوع تھا, جو ٹاپک تھا, وہ ٹاپک تھا خون عثمان کا قصاص. دوسرا پوائنٹ یہ کہ عبداللہ, اس لیے چونکہ وہ ٹاپک خون عثمان کے قصاص تھا, اس لیے یہاں پہ الامر سے مراد خلافت نہیں ہو سکتا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے خواہاں ہی نہیں تھے, وہ خلافت کے چاہنے والے تھے ہی نہیں, ان کو خلافت سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. بلکہ تو طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے, میں نے لیکچر میں پیش کی, میرا لیکچر نمبر 12 پیش کیا, کہ ان کے سامنے ان کو آفر کیا گیا کہ آپ خلیفہ بن جائے, انہوں نے کہا نہیں, مجھے خلافت نہیں چاہیے.
तो वो भी इसका मतलब कि वो खिलाफत का टॉपिक नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट ये कि खुद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो खुद कबूल कर रहे हैं, उनसे जब बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि हमें खिलाफत से, वो खुद कह रहे हैं कि हमें खून उस्मान का क़िसास चाहिए और खिलाफत का जो मामला है अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके ज्यादा हकदार हैं। जब सराहत के साथ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी सराहत के साथ, पूरी वजाहत के साथ कह रहे हैं कि भाई इसके हकदार वो हैं, हमें सिर्फ खून उस्मान का बदला चाहिए, फिर इस रवायत में अल-अम्र का माना खिलाफत कहां से ले आए आप? कौन सी दलील आपके आगे कि यहाँ अल-अम्र से मुराद खिलाफत है? तो खुलासा ये कि यहाँ जो मौजूद बहस है वो खून उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का क़िसास है, खिलाफत का मसला है ही नहीं। ये डंडी मारी अली मिर्जा ने, ये वो उस शख्स ने अपनी तरफ से लाके खिलाफत का लफ्ज़ बढ़ा दिया। हदीस के मतन में खिलाफत नहीं है तो अल्लाह के बंदे आप हमें कैसे करो कि हमने डंडी मारी? जी अब मैं इसका जवाब दे दूं क्या? इस रिवायत में इसका जवाब मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर से फिर जो ताबईन है वो पूछते भी है कि तुम आप उस वक्त खामोश क्यों रह गए कि जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी तरफ किनाया करके फरमाया? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसके ऊपर जवाब दिया कि मैं जवाब में ये कहता कि तुझसे बस ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ, जो आपने कहा ना कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ किनाया किया, इशारा किया, ये कहा मुझे निकाल के बताओ। ये तो आपके अल्फाज है ना, लिखा हुआ है जी, आप देख सकते हैं सामने रिवायत में कहा है, रिवायत में कहा है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया, किनाया किया। किधर है रिवायत में? सही बुखारी बताओ जी। ताबईन ने बोला ना, ताबईन ने बोला कि उन्होंने किनाया करके फरमाया। आप बताइए कौन सी लाइन में है? आपका दावा है ना भाई, ये तो आपका दावा है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ किनाया किया। क्यों किनाया करेंगे? आप कोई एक रिवायत बता दें कि अब्दुल्ला बिन उमर खिलाफत का अपने आप को हकदार कहते थे और ये कहते थे कि मुझे खिलाफत चाहिए। कहीं है कोई स्टेटमेंट है अब्दुल्ला बिन उमर का? जी यहीं पर लिखा है, इसलिए लिखा है। इसमें किधर लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर, एक मिनट, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी जिंदगी में कभी भी खिलाफत नहीं मांगी, इधर भी नहीं लिखा हुआ। ये तो आपकी बात है, कहां लिखा हुआ है? सही बुखारी के सबसे बड़े, एक मिनट, सही बुखारी के सबसे बड़े शारे हाफिज इब्न हजर रहमुल्लाह, जो बुखारी की शरह लिखते लिखते 25 साल बिता दिए, उनको नजर नहीं है? आपको नजर आ रहा है? आपको दिख रहा है कि अब्दुल्ला बिन उमर कर रहे हैं? हाँ, शर्म नहीं आती बात करते हुए? किधर रिवायत में? बाबे का हवाला नहीं दे मुझे, बाबे का हवाला नहीं दे। तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी क्या हैसियत है? हाफिज इब्न हजर रहमुल्लाह की हवाला नहीं, तुम्हारे हवाला क्यों? तुम्हारी कौन सुनेगा? कौन हो तुम? अहले हदीस अपने आपको कहते हैं बुखारी मुस्लिम पर है, बुखारी मुस्लिम पर है, क्योंकि बाबे की तरफ ना जाए। सामने रिवायत मौजूद है, सामने सही बुखारी में दिखाओ कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया। बहुत बताओ, सही बुखारी में बताओ कहां लिखा हुआ? कभी बताने और सामने 4108 नंबर हदीस। यही तो हदीस तो अली मिर्जा का वो है ना नौटंकी, उसकी नंबर मैं बता दूं, कुछ भी बोल रहे। आप रिवायत में मेंशन करो, अल्फाज मेंशन करो जहां पे ये बात है। कौन से अल्फाज बताओ भाई, अरबिक बताओ, कहां से कौन से अल्फाज में? किसका तर्जुमा आप कर रहे हो? अली मिर्जा से सुन के आए ना, जूम कर ले, जिसको थोड़ा जूम कर ले। क्या तर्जुमा जूम करूं क्या अरबिक जूम करूं? क्या जूम करे? तर्जुमा। ओके चलो, कौन सा चाहिए आपको? तर्जुमे में मिस्टेक है इसके, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया, ये रिवायत में कहां? बताओ कहां? नीचे तो चले, नीचे तो चले। बोलिए, बताइए जी। ऊपर चले। हाँ बताइए जी। नीचे थोड़ा ऊपर जी। यहाँ पे when the people deferred Hazrat Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu addressed that the people saying if anybody wants to पढ़ेगा। ओ भाई अरबी में बताओ, इंग्लिश नहीं, अगर अरबी में बताओ किधर है? एक बार इनको बताता हूँ, अरबी में बताओ किधर है? कैलिफेट लिखा हुआ है ना, अरबी में लिखा है जी, अरबी में लिखा है। अरबी में क्यों नहीं लिखा हुआ भाई? बताओ ना, पढ़ के अल्फाज पढ़ के कहां है वो? अल्फाज कर सकते ना, किधर है? ओ अल्लाह के बंदे, तुम्हारी बात है, ये अली मिर्जा ने तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया है बात, हदीस में नहीं है, नहीं हदीस में, ये तुम्हारी बात है। आप सामने पेश करें फिर क्या है? अरे है ही नहीं हदीस में। आप क्या करो, और दूसरी बात यह है कि ये बंदा ये पूरा लेक्चर सुन के आया भी नहीं है, पूरा लेक्चर सुन के नहीं आया है। ये जो दावा कर रहे हैं इसका पूरा, उसमें पूरे डिटेल में जवाब है। ये जो लोग दावा कर रहे हैं पूरे डिटेल में बहस है उसका, यानी जो हमने पूरे लेक्चर में इसकी वजाहत की है। आप बताओ मैंने क्या वजाहत की? ये जो लोग दावा करते हैं ना कि अब ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया, इसका पूरा जवाब मेरे लेक्चर में मौजूद है। वो जवाब, उसका जवाब दो आप। मेरे लेक्चर में इसका पूरा डिटेल में मैंने क्या मौजूद, उसका जवाब दो। अभी दो बातें, बाबे का हवाला मौजूद है। मैं बाबू को नहीं मानता, मैं बुखारी को मानता हूँ। अरे बाबू को नहीं, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो बाबे के लायक भी नहीं हो,
तुम्हारी क्या इज्जत है? बाबा को मत मान, तुम्हारी मानेंगे? यानी बाबा को छोड़ के तुमको मानेंगे? हाँ, मैं तो न्यूट्रल बाबा हूँ ना। को नहीं मानना, अली मिर्जा को मानना। नहीं नहीं नहीं, बाबा को नहीं मानना, अली मिर्जा को मानना। अब बाबा का कि मैं तो न्यूट्रल हूँ ना, मैं तो न्यूट्रल हूँ ना, मैं तो हकीकत अरे भाई, ये हूँ। तुम्हारी अपनी मैं तो बात है, बुखारी इस मुस्लिम बात पढ़ के को अपने ईमान को इजाफा समझो। करता हूँ। ये सारी बात अली मिर्जा की जिसके लोग ढो रहे हो, बुखारी में नहीं है। सही बुखारी में बात नहीं है, बाबे की नहीं मानना, अली मिर्जा को क्यों बनाओगे? ये जो बात जी, आप लेके आ रहे हो भाग अली रहे हो मिर्जा की, बुखारी में नहीं है, सही बुखारी में नहीं है भाग रहे हो बात। आप जी, आप भाग रहे हो आप। अच्छा शेख एक हाँ? मिनट, एक मिनट। अरे भाई सही क्या बुखारी है में ना, किधर है? शेख जो बोल रहे हैं, शेख जो बात बोल रहे हैं ना, आप जरा बात समझो। वो जो कैलिफेट वर्ड वहां लिखा था ना, कैलिफेट वहां पे तो तर्जुमे में, आप गूगल ट्रांसलेट में मैं सेम हदीस डाल रहा हूँ। मैं आपको सेम हदीस अभी गूगल ट्रांसलेट से बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। और आप देखोगे कि वो गायब हो जाएगा। वो वर्ड कौन सा वर्ड गायब हो जाएगा? कौन सा वर्ड गायब हो जाएगा? वो ये कैलिफेट नहीं है वर्ड गायब हो कैलिफेट जाएगा। का, ये मामला हाँ, वो कैलिफेट का नहीं कैलिफेट है वर्ड है मामला। ना, जो मुतरजिम ने, ट्रांसलेटर ने जो दिया है नहीं, ना, वो इन्होंने ये अरबिक कहा में नहीं कि है। इन्होंने ये कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा किया। और ये इशारा किया कहाँ है बताओ? उनकी इशारा तरफ किया इशारा वो किया। वहां भी नहीं है। ये इशारा रवायत में किया कहाँ इशारा वहां भी जी किया? नहीं है। मसला है ना, जी मसला जो है ना वो कैलिफेट का नहीं है। मसला इसमें कि जवाब में क्या कहा? जवाब में ये कहा कि तुझसे ज्यादा इस खिलाफत के हकदार वो है जिसने अभी तुझे और आपने तेरे बाप एक को बात इस्लाम में किया, दाखिले एक के लिए मारा है। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी बात है, रिवायत में नहीं है। ये रिवायत में ये नहीं है, रिवायत अरबी में में मौजूद है। अरे नहीं है, अरे जाहिल आदमी, तू अली जी मिर्जा को सुन खोले के रिवायत, खोले ये रिवायत, रिवायत में खोले नहीं है। रिवायत, ये रिवायत खोले में नहीं, तू रिवायत, बता अरबी अल्फाज पढ़ के बता तर्जुमा। जी खोले देखो, खोले ये रिवायत, ये खोले इंग्लिश रिवायत, तर्जुमा भी रिवायत में देख नहीं, ये लेते तुम्हारी जहालत है। देखो खोले अरबी खोले सीखो जाके, नहीं है खोले रिवायत में। रिवायत। अरे तुम निकालो ना, सीधा एंड पे, एंड पे निकालो। सीधा। बोलो कहाँ है भाई? इशारा किया कहाँ है? इशारा किया कहाँ है? इशारा इशारा नहीं, किया, नीचे बराबर नीचे जाए जी, पूरा नीचे चले जाए। हाँ चलो गया। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने क्या कहा कि जी वहां से खिलाफत पढ़े, जी वहां से पढ़े, जी ऊपर से पढ़े, ऊपर से पढ़े। अब्दुल्ला बिन उमर साइड, हाँ अरबी जी इंग्लिश पढ़े तो पढ़े, जी पढ़े पढ़े। एक मिनट पहले इनका तर्जुमा देखकर फिर अरबिक पे जाएंगे। अरबी बताओ किधर है, अरबी अल्फाज बताओ किधर है। तो आपको फिगर आउट करना है ना, अरबी में आपको फिगर आउट करना। मैं तो न्यूट्रल बंदा हूँ, भगा इसको, भगा इसको नाले को। अरे मैं तर्जुमा करके मैं तो बताऊंगा, न्यूट्रल बंदा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। बताऊंगा। तू आया है आर्गू करने के लिए, इशारा मैं तर्जुमा किया, करके एक बताऊंगा। रुको, हाँ? इशारा किए वो कहाँ है? तर्जुमे में पागल आदमी, इंग्लिश में भी कहाँ है? 3 हफ्ते से इसको टाइम दिया जा रहा है, तैयारी करके आना, कम से कम एक हदीस पढ़ के आना चाहिए था ना। जवाब हाँ? जी जी जवाब देखिए ना, जवाब क्या अब्दुल्ला बिन उमर का? की औकात नहीं है बंदे की, एक लाइन नहीं पढ़ सकता और आया आर्गू करने के लिए। इशारा आप किया आपने अहले हदीस टॉपिक कहते हैं ना, को अपने आप अहले हदीस कहते हैं ना, बुखारी मुस्लिम से भागते हैं आप लोग। अरे पागल आदमी, तू है ही नहीं सही बुखारी में, अली मिर्जा ने तेरे दिमाग में घुसाया हुआ है। बुखारी मुस्लिम को मानते नहीं आप लोग, और अहले हदीस अपने आप को कहते हैं। जो जो है नहीं। बात सही बुखारी की रवायत के अंदर नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में उड़ेल रहा है अली मिर्जा, वो आके यहाँ पे बक रहे हो, वरना दिखा रहे हो में कहा है, पागल आदमी। अच्छा बोलो शेख, बुखारी रिलैक्स मुस्लिम का डिंडोरा पीटते हैं ना आप लोग, बुखारी मुस्लिम का डिंडोरा पीटते हैं, अहले हदीस अपने आप को कहलवाते हैं। नो अभी नो हम नो, लोग जो भी बुखारी मुस्लिम का किफायत नाम करो ले दीजिए, किफायत करो दीजिए। वो ले भाई। हम लोग बुखारी कहते हैं मुस्लिम का नाम ले रहा है। नहीं, हम भाई, क्या कहते हैं कि आप देखो, एकदम आप पागल बना रहा है तैयारी शेख, क्या करते इनको बोल बोलते हैं। हाँ? शेख आप चुप जाए, शेख आप चुप जाइए। अभी शेख, दलील की relax बात है। नहीं करेंगे, दलील की बात आएगी तो आप आइएगा। आप जब दलील मांगेगा तो आप आइएगा। अभी हम लोग दलील हैं। मैं सामने रख रहा हूँ जी, मैं नहीं, दलील नहीं, सामने रख रहा हूँ, ये हजरत भाग जी, रहे हैं। एक लाइन, एक लाइन। आपको जो दिख रहा है वो है नहीं। आवाज़ दलील है? बहुत हो रही है। अब्दुल्ला बिन उमर की क्या तरफ नाम है इशारा इनका, किया भाई? है, इशारा किया कहाँ है? था इशारा किया नहीं था ना? जी नीचे अब देखना, मानो- नीचे देखना, अब्दुल्ला बिन नीचे उमर का देखिए, आंसर बताओ, देखो ना, नीचे अब्दुल्ला बिन देखिए। उमर का आंसर देखो। बताओ कहाँ इशारा किया कहाँ है? जितना ऊपर जाना है नीचे आना है ही नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर का आंसर तो देखे, अब्दुल्ला बिन उमर ने आंसर क्या दिया है? क्या दिया है? पढ़ो। जी पढ़े। अब मैं क्यों पढ़ूं? आप बताओ इसमें आप इशारा तर्जुमा किया करो, कहाँ अभी है? कहोगे कि हमने गलत किया। आप तर्जुमा सही करो। इशारा किया कहाँ है? आप यहाँ करो। पे इशारा किया है ही वहां से नहीं। पढ़े जी, वहां से पढ़े। He who fought against you and against your आप पढ़ो father ना। for the sake of नहीं, Islam. आप अरबी पढ़ो, आप अरबी पढ़ो और आप तर्जुमा करो, इसलिए कि हम करेंगे तो बहुत गलत कर रहे हैं। उनके तर्जुमे में ही नहीं है वो। बोले जो वो बोले पढ़ रहे हैं। तर्जुमा क्या है? कि अगर आपके हक में इशारा जाती ना, आप क्या तर्जुमा कहा कर ले। अच्छा आपका अरबी पढ़ो point आप। बोलो। यार ये बाबा को मानते नहीं है तो तर्जमा खुद करना चाहिए। किसी बाबे ने ही तर्जमा किया, कैसे मान लेंगे आप तर्जमे को? आपको अरबी जी मैं सीख मान करके लूंगा आप तर्जमा करना तर्जुमा चाहिए करें, जी मैं मान लूंगा, भाई। जी मैं इतना मान बाबे लूंगा को आप नहीं मान, तर्जुमा करें। आपने इतने कॉन्फिडेंस से आकर के बोला रिवायत खोलो, मैं तो समझा के ले आए आप तो उसके बाद बोल रहे ट्रांसलेशन पढ़ो, तो ट्रांसलेशन भी तो किसी बाबे ने ही ये किया है मेरे रिवायत तो भाई। बाबे ने एक लिखी है काम ना, करो, ये जो रिवायत है ये मेरे बाबे ने लिखी है, बुखारी मुस्लिम। आप इसका तर्जुमा करें।
ओ अल्लाह के बंदे, बुखारी मुस्लिम में नहीं है वो तुम्हारी बुखारी मुस्लिम में बात नहीं है जो तुम कह रहे हो, यही तुम्हारी जहालत है। जाओ अरबी सीखो, जाओ पहले अरबी सीखो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें अरबी नहीं आती, वो उल्लू बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा तर्जुमा है। भी नहीं कर पा रहे आप लोग, तो तर्जुमा भी नहीं कर पा रहे। अली मिर्जा तुमको बेवकूफ बना रहा है। तुम अल्लाह के बंदे अरबी सीखो, तर्जुमा करो, तर्जुमा करो खुद, तुम्हारे साथ हक़ाइक़ जो प्रॉब्लम सामने है। आ जाएंगे। पूरी एक एक लाइन मेरे लेक्चर में ना, एक एक लाइन का तर्जुमा है। तुम यहाँ पे, मैं 3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि जाओ सुन के आओ, तर्जुमा करो। मेरे लेक्चर में कोई एक सिंगल लाइन बता दो, मेरा जो लेक्चर नंबर 12 है ना, लेक्चर नंबर 12, सिंगल लाइन बता दो इस रिवायत का जिसका तर्जुमा मैंने नहीं किया है। इसलिए ये मत कहना कि आके यहाँ तर्जुमा करो, तर्जुमा ऑलरेडी मैंने किया है, जाके सुन लो, पूरा लेक्चर सुन लो, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मैंने तर्जुमा किया। और ये बंदा आके कह रहा है नहीं आप तर्जुमा करो, तर्जुमा तो ऑलरेडी किया हो ना, उस पर कोई काउंटर करना बताओ मैंने तर्जुमा गलत किया है, नोट करके आना चाहिए। 3 हफ्ते से हम कह रहे हैं कि पूरा लेक्चर सुन के आओ और जहां एतराज है नोट करके आओ। अगर तुम्हें लगता था कि तर्जुमा मैंने गलत किया, तुम नोट करते और कहते हदीस में ये है, आपने तर्जुमा गलत किया, मैं एक्सेप्ट करता उसको। अब यहाँ आके आज कह रहे हो कि तर्जुमा करो, क्यों करो तर्जुमा, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं तर्जुमा, कितनी बार तर्जुमा कराओगे? तो तैयारी करके आओ, मेहनत करके आओ, ताकि अच्छा लगे बात करने में। लेकिन इस बंदे ने अभी भी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत सुना होगा शायद, लेकिन पूरा कंप्लीट लेक्चर नहीं सुना है। कंप्लीट लेक्चर सुनता तो यहाँ के नए सिरे से वो सब अली मिर्जा की लाके बातें पेश कर रहा है, जिसका जवाब दिया जा चुका, उसको काउंटर करना चाहिए। उस लेक्चर में मैंने जो बातें कही हैं उन बातों को काउंटर करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए कि आपने ये कहा और ये गलत है, आपने ये तर्जुमा किया ये गलत है, ऐसे नोट करके लाना चाहिए ना बंदे को। तो हम ये कहते हैं कि जब हम इस स्ट्रीम में अपने किसी लेक्चर का हवाला देते हैं, अगर किसी भाई को एतराज है तो जाइए लेक्चर सुनिए, कॉपी कलम लीजिए और नोट कीजिए कि आपने ये कहा गलत है, आपने ये तर्जुमा गलत किया, आपकी बात सही होगी हम मान लेंगे, नहीं सही होगी तो आपके जो है तू तड़ा करने से थोड़ी मान लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके कुछ सवालात, एतराज़ात, जो भी कुछ आपके सवालात हैं, आप वहाँ पे जाके रख सकते हैं। वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन रात में 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप अपने सवालात वहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए, इंजीनियर मिर्ज़ा जो है, उनके स्टूडेंट्स जितने भी हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मंजन चूरन बेचा है सही बुखारी के नाम पे, सही मुस्लिम के नाम पे। हालांकि वो बुखारी की हदीसों में अपनी ब्रैकेट लगाकर अपनी तशरीहात करता है और उसको बुखारी का नाम देता है।